Good morning, everyone. Good morning, everyone. Today, we are going to start chapter 8, that is quadrilateral, right? So, quadrilateral, in this chapter, we will study different types of quadrilaterals and their properties. We will prove different properties of the quadrilateral. Till now, you have studied various properties of rectangle and square. स्क्वायर की प्रॉपर्टीज डायगोनल्स की आपने की है कि डायगोनल की जो स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती हैं दे आर इक्वल, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट। ये प्रॉपर्टीज अपने 8th क्लास में यूज करनी सीखी थी कि ऐसा होता है तो हम इसको यूज कर लेते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बट नाउ इन 9th क्लास वी विल प्रूव दीज प्रॉपर्टीज कि ये होती कैसे है। एक स्क्वायर की दो डायगोनल्स इक्वल होती हैं, कैसे होती हैं वो आप प्रूव करोगे। वो बाइसेक्ट करती हैं, आप प्रूव करोगे। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं, दैट यू विल प्रूव। ठीक है, सिमिलरली यू विल प्रूव रोम्बस की भी आपने ऐसे ही की थी। रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर इक्वल नहीं होती। इक्वल सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस। Many other questions will also be there which you will prove. Different properties will be there which you will prove in this chapter. So let me start with the first question. I think now it is clear. Let me start with the first question where they are saying that there is a quadrilateral and the ratio of its angles is 3, 5, 9 and 13. 3, 5, 9 and 13. This is the ratio of the angles of the quadrilateral and we have to find out the angles of the quadrilateral. फटाफट से find out करके बताओ. I know that you all will do this question. You are given the ratio of the angles. If the ratio is given, what do we take? We take the angles to be, let angles are 3x, ratio is given na? So you will have to take one variable. Something is getting multiplied with all these numbers, 5x, 9x and 13x. We have taken 4 angles of the quadrilateral. Yes. Now what property, which property we are going to apply to find out the value of x? Which property will be applied? Hurry up. ईशान बोलो क्या कह रहे हो? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। Wait. Angle, some property of triangle. Yes. Angle, some property of triangle. Triangle नहीं लगाएंगे. Now you are talking about quadrilateral. Shreya has given the answer 90, 60, sorry, 60, 108, 36, 156. Angle sum property will be applied here. So we will write by angle sum property. What will be the sum? We will write, yes, it will be 360. 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360. Right? Triangle, in case of triangle, this is 180, but in case of quadrilateral, this is 360. What is the value of x coming out to be? जल्दी से बताओ, x की वैल्यू कितनी आई है आपकी? x is coming out to be 12. ठीक है, और अगर आपकी x की वैल्यू आ गई, that means you can write the angles by multiplying with 3, 5, 9 and 13. So you will write, so angles are 3 into 12, 36, 5 into 12, 60, and 9 into 12, 108, and 13 into 12, 156 degree. ठीक है, so these are the 4 angles
मैम क्वाड्रिलेटरल। यस मैम, ये पता कैसे चलता है प्रॉपर्टी कैसे कौन सी लगानी है? बेटा, जब आपके पास देखो एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है एंड यू आर गिवन द एंगल रेशियो ऑफ द एंगल्स, ठीक है, तो आपको एंगल्स का रेशियो जब भी गिवन है आप उससे ये इस तरह से एक्स लगा के ये तो एज्यूम करोगे ही करोगे, ठीक है। जैसे हम 8th क्लास में भी चैप्टर 2 था आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, 7th में भी किया, जहां पर भी आपको रेशियो गिवन होगा वहां पर आपने एक्स लगा देना उनके साथ, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें क्वेश्चन में कुछ और गिवन ही नहीं है, तो हमें खुद ही सोचना पड़ेगा कि हम अपनी तरफ से कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जब एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं, तो प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही है कि एंगल्स का सम 360 होता है, तो हमें वही लगानी पड़ेगी खुद ही सोच के। थ्योरम्स में आपको अपनी तरफ से दिमाग लगाना पड़ता है कि आप इसमें क्या कर सकते हो। जो क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज दैट and then you will apply your mind that what can be done to reach at the answer, right? Now the second question, if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। देखो इसमें जब आपकी थ्योरम शुरू हो चुकी है, show that बोला है ना, that means it is a theorem, right? और ये कह रहे हैं कि आप प्रूव करो पैरेललोग्राम को, अगर पैरेललोग्राम की डायगोनल्स इक्वल हो जाती हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। दिस इज अ पैरेललोग्राम। जब तक आप इसको टेढ़ा बनाओगे, टिल्टेड बनाओगे, इसकी डायगोनल हमेशा ये वाली बड़ी जाएगी और ये वाली छोटी जाएगी, ठीक है। ये कह रहे हैं अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल हो जाएं, इक्वल करने के लिए हमें इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको छोटा करने के चक्कर में आप इसको ऐसे घुमाओगे, ये थोड़ी छोटी हो जाएगी और ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जैसे ही आपकी डायगोनल्स इक्वल होंगी तो ये आपका क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस में जो भी आपको प्रूव करना होता है आप फिगर वही बनाते हो, ठीक है। आपने प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा, तो हम इसमें फिगर किसकी बनाएंगे, रेक्टेंगल की ही फिगर बनाएंगे और हम कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है, हमें रेक्टेंगल तो प्रूव करना है, राइट। सो दिस इज द पैरेललोग्राम गिवन, दे आर सेइंग इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल है। थ्योरम है तो हमें लिखना पड़ेगा व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू प्रूव, व्हाट इज द प्रूफ, राइट। सो आपको क्या गिवन है, अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब इन्होंने पैरेललोग्राम भी नहीं बोला कि आपने ए बी सी डी लेना है या क्या लेना है, दैट आल्सो यू हैव टू टेक योरसेल्फ, ठीक है। और यहाँ पर और क्या गिवन है इसमें, इन विच डायगोनल्स आर इक्वल। सो डायगोनल्स कौन कौन सी आपकी, एंड पी डी। यस मैम, आपने गिवन के बाद ए लिखा है, ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा a है? parallelogram, I have written a parallelogram, you are given a parallelogram, right? So a parallelogram ABCD in which AC is equal to BD, right? Only this much is given, and what we have to prove, we have to prove that this is a rectangle, ABCD is a rectangle. Now अगर मुझे इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, व्हाट विल आई हैव टू प्रूव, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या शो करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम से क्या अलग प्रॉपर्टी होती है, बताओ। हाँ जी बोलो मंग। all angle should be 90 degree। Yes, what the property we have to use is all angles are 90 degree। तो आपने इसमें किसी एक एंगल को भी अगर 90 प्रूव कर देते हो तो आपका ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 हो जाता है तो उसके सारे एंगल्स ऑटोमेटिकली 90 हो जाएंगे एंड इट विल बिकम अ रेक्टेंगल। सो नाउ आवर टास्क इज टू प्रूव वन ऑफ इट्स एंगल टू बी 90 डिग्री, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज आई एम गोइंग टू शो दैट एंगल ए इज 90 डिग्री, मुझे ये प्रूव करना है। उसके लिए मैं ले रही हूँ ये ट्राइंगल, आई एम टेकिंग दिस ट्राइंगल एंड आई एम टेकिंग दिस ट्राइंगल। मैं प्रूव कर रही हूँ इनकी कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी कैसे करोगे बताओ, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। हाँ जी बताओ क्या क्या लिखो। यू आर गिवन दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स आर इक्वल, ये आपको गिवन है।
मैम कैसे? बीडी तो Vertically कॉमन Yes, होगा। ma'am. मैम बीडी तो कॉमन होगा दोनों में। BD ए भी कॉमन है AB is common. मैम, ए भी कॉमन है ए भी कॉमन है। AB is equal to मैम, AB. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कैसे? एंगल A is equal to एंगल B कैसे लिखोगे? एंगल ए पैरेललोग्राम है। मैम BD is equal to AC. A साइड से is equal to इक्वल टू बीसी गिवन। क्यों? गिवन है। मैम ऐसे एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। वही तो लेके आनी है। These are Ma'am, the sides of AD the parallelogram. ठीक है। और थर्ड क्या लूँ? साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी। हाँ जी बोलो। मैम हाँ जी। मैम अगर रेक्टेंगल है तो फिर AC और BD हुए नहीं। बेटा AC और BD इक्वल गिवन है, रेक्टेंगल हमने प्रूव करना है। तो गिवन वाला डाल नहीं सकते वहाँ। गिवन वाला तो आप यूज कर रहे हो, हम तो यूज कर रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है तभी इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। और आपको गिवन है AC इज इक्वल टू BD है, वो भी हम यूज कर रहे हैं दैट AC इज मैम इक्वल हो तो गया। दिस इज गिवन। Yes, this is done now. So we will say that triangle ABD congruent triangle कौन सा? ABD, it is congruent to triangle BAC by side BAD BAC. ABD BAC they are congruent by side. अभी तक हमने सिर्फ congruency prove की है, but still we have to prove that angle A and angle B they are 90 degree. If they are congruent, can I say that angle A is equal to angle B? हाँ जी, angle A is equal मैम to इसके अंदर मैम ये जो आपने फिगर बनाई है इन ट्रायंगल्स की कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर तो पूरा एक ट्रायंगल ही कॉमन आ रहा है। हाँ, कॉमन का हमने कुछ नहीं करना ना, हमें उस कॉमन को नहीं देखना होता। जब आपको कॉन्फ्रेंसी प्रूव करनी है तो आपको सिर्फ साइड्स और एंगल्स का यूज कर सकते हो। आप बीच वाले ट्रायंगल आने दो, कॉमन आ रहा है तो ठीक है। यस, आफ्टर दिस वी आर सेइंग कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो गया। ऊपर वाला इरेज कर रही हूं मैं, गिवन टू प्रूव। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय CP ठीक है। बट मुझे अभी भी इसको 90 प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करके मेरा काम नहीं चल रहा। 90 किस तरह से प्रूव करेंगे? पैरेललोग्राम है, फिर से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। A and B are the adjacent angles of the parallelogram and what is the property of adjacent angles of parallelogram? क्या प्रॉपर्टी होती है? हाँ जी बोलो मंग। हम को इंटीरियर एंगल के मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, वही एक ही बात है। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स बोलो या को इंटीरियर एंगल्स बोलो, वन एंड द सेम थिंग। A plus equal to 180 डिग्री। यस, यहाँ पर आपका बट A प्लस एंगल B दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन लिख दो, दे आर एडजेसेंट एंगल्स। मैम अभी तो हमने कहा था 360 आता है। बेटा दो एंगल्स बोल रही हूँ, 360 हमने चारों एंगल्स का सम लिया था। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। ये देखो ये लाइंस पैरेलल हैं, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये इनको कट कर रही है, तो ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, जब आप ऐसे करते हो तो ये को इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले दो एंगल्स का सम 180 होता है। तो उसी तरह से ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दो एंगल्स का सम हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको यूज कर रहे हैं 180 एंड रीजन जो आपको ठीक लगे, एडजेसेंट एंगल्स लगता है एडजेसेंट लिख दो, को इंटीरियर से समझ में आता है वो लिख दो, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर मैम इस चैप्टर में भी कॉन्ग्रुएंसी यूज कर सकते हैं क्या? पूरे चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी यूज होनी है। ठीक है, जो चीजें आप लर्न करते जाओगे, जो चीजें आप सीखते जाओगे, वो आगे वाले चैप्टर्स में आप कहीं भी कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर बट A इज इक्वल टू B है, तो मैं B की जगह पे A लिख दूं। सो वी हैव एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मींस डबल ऑफ एंगल A 180 डिग्री। तो एंगल A आपका कितना हो गया 180 अपॉन 2 90 डिग्री 90 डिग्री। और पैरेललोग्राम का एंगल A 90 हो गया, दैट मींस दिस इज अ रेक्टेंगल।
ठीक है, जब भी आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है, पैरेललोग्राम, इफ वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 90, इट विल बी अ रेक्टेंगल। क्यों हो जाएगा रेक्टेंगल? या फिर यहाँ पे लिख दो, सिमिलरली एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, दे ऑल आर 90, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर आपका एक एंगल 90 आ गया तो एडजेसेंट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स करके मतलब ये ऑपोजिट एंगल्स ये दोनों इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। ठीक है, आपने ए और बी दोनों बताए कि इन दोनों का सम, ये दोनों पहले ही आपने इक्वल बता दिए। ये 90 है तो ये 90 हो गया, ये 90 है तो इसका ऑपोजिट एंगल 90 हो गया, मींस ऑल द एंगल्स आर 90, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। चलिए, I hope the question is clear to everyone. Come to the next question. आज सिर्फ 3 मैम क्वेश्चन। आज पूरी एक्सरसाइज कराओगे? नहीं बेटा, सिर्फ अगला क्वेश्चन करवा के बंद कर रही हूँ, उसे ज्यादा नहीं करवाऊंगी। एकदम से सारी थ्योरम्स नहीं समझ में आती हैं। Show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. आपने प्रूव करना है rhombus है। आपको अभी बताया, जो आपने प्रूव करना होता है हम वही बनाते हैं। हाँ जी रोशनी, आपने प्रूव करना था ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही तो प्रूव कर दिया। पैरेललोग्राम के अगर आपने चारों एंगल्स 90 प्रूव कर दिए तो वो रेक्टेंगल हो गया। वो स्क्वायर भी तो हो सकता है। हाँ मैम वो स्क्वायर भी हो सकता है ना? बट पैरेललोग्राम है ना, स्क्वायर करने के लिए उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। देखो अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि अगर रोम्बस की डायगोनल्स इक्वल हैं तो प्रूव करो वो स्क्वायर है, तो रोम्बस का एक एंगल 90 होता ही हम कह देंगे कि वो स्क्वायर है, क्योंकि उसके सारी साइड्स भी इक्वल है। ठीक है रोशनी, यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट। अच्छा वो गलती से लिख दिया था, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, बाय मिस्टेक आई रोट ABCD विल बी अ रेक्टेंगल। ठीक है, लास्ट लाइन अगर लिखी थी। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूव करने के लिए वी विल ड्रॉ द रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, देन इट विल बी अ रोम्बस। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है रोम्बस है, और उसके लिए आपको क्या गिवन है? यू आर गिवन that diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle. Diagonals bisect at right angle. दो चीजें आपको given है, that diagonals are bisecting and second thing they are bisecting at right angle. तो यहाँ पर इसकी diagonals हैं, let me take it as A, B, C, D. So its diagonals we are taking as AC and BD. Now they are saying they are bisecting. If I take the point of intersection to be O, bisect means ये दो parts equal हैं, 2 equal parts are there, right? ये भी bisect हो रही है, so this is equal to this. और 90 डिग्री पर bisect each other at 90 degree at right angle. That means ये जो बीच वाले 4 angles हैं, ये चारों के चारों आपके 90 डिग्री हैं, right? So what is given to us in the question? श्रेया कुछ पूछना है आपने? मैंने पूछना था पिछले क्वेश्चन में 90 डिग्री कैसे आया? वो बेटा पिछले क्वेश्चन में आपने पहले आपने प्रूव किया A is equal to B by CP। यस मैम। ठीक है, ये आपका A, ये B, आपने प्रूव किया कि ये दोनों इक्वल है। फिर हम कह रहे हैं कि इन दोनों का सम 180 है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, राइट? दो चीजें इक्वल है, उनका सम 180 है, तो दोनों कितने कितने की हो गई? 90। बस वैसे ही प्रूव किया है आपने। B की जगह पे A पुट कर दिया, A प्लस A इज इक्वल टू 180। यहाँ पर कितने A हो गए? डबल ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180। नाउ डिवाइड बोथ द साइड्स विद 2, यहाँ से 2 हट गया और ये आपका आ गया 90। एंगल ये आपका 90 आ गया। सिमिलरली ऑल एंगल्स आर 90, सो इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ओके। Now in this question, what we will write in the given part? In the given, we will write
a quadrilateral ABCD in which what is given? You are given AO is equal to OC, BO is equal to OD. आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन गिवन है, उस एक लाइन से आपने अपने आप सारा कुछ लिखना है, दैट व्हाट इज गिवन टू अस एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव. इन्होंने सिर्फ इतना कहा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. तो ये सारा हम इस एक लाइन से लिख रहे हैं. ये इक्वल हो गई राइट एंगल पर. सो इनको नेम्स दे दीजिए. लेट दीज आर 1 2 3 एंड 4. राइट, 40 नहीं लिखा है. दिस इज नेम 4 एंड O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. Angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, they are given to you 90 degree. And we have to prove that ABCD is a rhombus. Rhombus prove करने के लिए आप ये ना कुछ points लिखते जाना. Rhombus prove करने के लिए आपको हमेशा prove करना पड़ेगा कि adjacent sides equal होती हैं. Adjacent मतलब ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों. So its adjacent sides we have to prove to be equal. मैम इसके अंदर तो 2 और 4 वैसे ही इक्वल आ गया और 1 और 2 वैसे ही इक्वल आ गया क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. हाँ तो सारे 90 गिवन है बेटा, वो तो वैसे ही सारे इक्वल हैं. ठीक है, अब आपने प्रूव करना है इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है. अगर मैं किसी तरह से AD इज इक्वल टू AB प्रूव कर देती हूँ, फिर मैं ये लिख दूंगी सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD. चारों साइड्स इक्वल हो गई तो ये रोम्बस हो गया. राइट, नाउ व्हाट आई हैव टू प्रूव इज AD इज इक्वल टू AB. अब जब AD AB प्रूव करना है तो मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रही हूँ. किस चीज की कॉन्ग्रुएंसी लूं? कौन सा AOD और AOB की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दो दोनों ट्रायंगल्स की. ले लो फिर. You prove the congruency of AOD and triangle AOB. बताओ क्या क्या लिखूं? AOD का क्या किसके इक्वल है? AOB के बोलो. मैम O तो कॉमन है वैसे. एंगल O कॉमन पॉइंट है. कॉमन नहीं लेते. पॉइंट कॉमन नहीं लेते. यस नैन्सी, AB इज इक्वल टू AD. देवांशी मैम AO इक्वल टू BO. BO सब AO इक्वल टू BO. एक रोशनी मैम ने OD इज इक्वल टू BO. हैं. मैम OD इज इक्वल टू BO. हाँ जी, मैम AO नहीं ले सकते क्या? ले सकते हो जी, ले सकते हो. AO इज इक्वल टू AO. OB is equal to शुरू कर रही हूँ मैं. OD. is equal to AO. This is common. Side is common. And we are writing OD is equal to OB. ये इसके equal है. Why? Because this is given to us. And third, we are taking angle 1 is equal to angle 2. This is 90 degrees because this is also given in the question. ठीक है, अब आपके पास कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन गई? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से आपके ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट. इरेज कर रही हूं मैं ऊपर वाला. यू हैव ट्राइंगल AOD congruent triangle AOB by SAS congruency. ठीक है, SAS से अगर ये congruent हो गई, now we can say that AD is equal to AB by CP CT. Right, now as AD is equal to AB, similarly if we take these two triangles we will be able to prove AB is equal to BC. If you take these two triangles तो आपकी BC is equal to AD आ जाएगा. But we do not have to write all these things. We will mention similarly AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Now all sides are equal of the quadrilateral, and if all sides are equal means it is a rhombus. ठीक है, यही आपने प्रूव करना था. Hence proved. Right, so this was the question. We have done 3 questions today. If anyone has any doubt, then you may unmute yourself.